Hey students, good morning. Today we are going to discuss the theories and concepts of labor welfare. Okay. So yesterday what we did was concepts of industrial relations. Okay. And today we are going to see what are the theories of labor welfare. Okay, and what are the concepts of labor welfare. Make sure that you have gone through the yesterday's video as well, because that is also very important. So whatever we are doing these days, so these are one of the most important topics for any UGC NET exam for code 55 or for your any HR PSU exam. So these are some of the topics that are asked, okay, frequently and often they are asked. And yes, I have a group called HR with Sanchita. Okay, so it's with the same name as my channel. So this is a Telegram group. So make sure that you follow it, because on it I give all the updates. And even if in the future we'll be having quizzes, so that would also be on that channel only. That is HR with Sanchita. So make sure that you like, share, and subscribe to this channel also. Okay, and share with your friends, because if you will not share, then this thing will not spread to more students. Okay, what I am doing. Let's start now. So concepts of labor welfare. So these are the concepts, that is total concept, okay, relative concept, positive concept, and social concept. So these are the concepts that we'll be studying one by one today. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप कोई भी यूजीसी नेट का एग्जाम खोलेंगे, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो आगे मैं कराऊंगी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो कल मैंने कराया उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी दैट व्हाट इज द टोटल कंसेप्ट. नाउ, so we are talking about the concepts of labor welfare. Okay, so what does it tell? What does the total concept tell? That welfare should spread to all levels of the organization. ठीक है, जो भी ब्लैक में हाईलाइटेड है आप प्लीज उस पर जरूर ध्यान दें. दो करना तो सब कुछ ही है, बट बिल्कुल जब आपकी नजर जाएगी तो उस पर जाएगी रिविजन के टाइम. एंड नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक. सो वेलफेयर शुड स्प्रेड टू ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टोटल मतलब सब चीजें इंक्लूड करो, राइट. तो जो भी हम वेलफेयर करते हैं, जो भी फैक्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज वेलफेयर करती है, तो वो हर लेवल, इट शुड स्प्रेड टू ऑल लेवल. ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर लेवल का वेलफेयर कर रहे हैं या सिर्फ मिडिल लेवल का वेलफेयर कर रहे हैं. सारे लेवल्स पे स्प्रेड हो. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी लेवल should be included while doing or while planning the labor welfare activities. Then it should include फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग ऑफ द पर्सन. अब ये वाला पॉइंटर तो आ गया, दैट वेलफेयर शुड स्प्रेड टू ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेकेंड पॉइंटर हियर इन द टोटल कंसेप्ट इज कि इट शुड इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग ऑफ द पर्सन. तो पूरा वेलबींग होना चाहिए पर्सन का भी. ठीक है, लेबर वेलफेयर एक्टिविटी से उसका फिजिकल वेलबींग भी होना चाहिए, इमोशनल वेलबींग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. ठीक है, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है. इवन अगर आप मेंटली अच्छे हो, ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, बट आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, ओके, सो वो आपकी सक्सेस को काफी हैम्पर करता है. सो दैट इज व्हाई इन द टोटल कंसेप्ट इट इज सेड दैट द वेलफेयर, द लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज शुड इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग ऑफ द पर्सन. सो नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग ये टोटल. ये मैं आपको दोनों पॉइंटर्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ऐसे पूछा गया है कि कौन सा कंसेप्ट बोलता है दैट वेलफेयर शुड स्प्रेड टू ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो योर आंसर वुड बी टोटल कंसेप्ट. And the second dimension of total concept is that it should include physical, emotional, and mental well-being of the person. So where this is given, so the answer would be total concept again. Okay, so these both pointers do remember. Okay, I hope it is clear. Again, that the welfare should spread to all levels of the organization, and it should involve physical, emotional, and mental well-being of the person. Now let's go to the next concept. Now the next concept of labor welfare is relative concept. ठीक है, अब relative concept means that the relative concept stresses on the fact that welfare is related with time and place.
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट वेलफेयर इज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। तो ये मुझे ब्लैक हाईलाइट करनी चाहिए थी, तो मैंने चलो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज है वो टाइम और प्लेस से रिलेटेड होती है, मतलब टाइम टू टाइम डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज होती है और प्लेस से भी डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो वेलफेयर एक्टिविटीज 20 ईयर्स पहले होती थी तो और जो आज होती है उसमें डिफरेंस होता है। सो डू द वेलफेयर एक्टिविटीज डिफर, क्योंकि 20 साल पहले लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स अलग थे, लोगों की नीड्स अलग थी, बट अब जैसे कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, बहुत चीजें इवॉल्व हो रही है, नीड्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई सो लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज आर डिफरिंग, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है। पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। एंड देन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्लेस। अब देखिए अमेरिका, इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका, वो हमारे से काफी आगे है, इट्स अ डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो बताइए वहां पे वेलफेयर एक्टिविटीज अलग हो रही होगी एंड इंडिया में वेलफेयर एक्टिविटीज अलग हो रही होगी। वेर एज इफ यू टॉक अबाउट इंडिया एंड एनी अदर कंट्री जो इंडिया से भी नीचे हो, तो वहां पे वेलफेयर एक्टिविटीज अलग हो रही होगी और यहाँ पे ऑब्वियसली अलग हो रही होगी। ओके, सो दैट इज वाई दे डिफर अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड दे डिफर अकॉर्डिंग टू द प्लेस, ठीक है। लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज डिफर करती है भाई, 10 साल पहले 20 साल पहले कुछ और हो रही थी लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज, अब कुछ और हो रही है, राइट। एंड अमेरिका में कुछ और हो रही है, इंडिया में कुछ और हो रही है, राइट। सो दिस इज द रिलेटिव कंसेप्ट, दैट द रिलेटिव कंसेप्ट स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट दैट वेलफेयर इज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड just hit the like button. Now next is the positive concept. अब now what is the positivity, ठीक है। पॉजिटिव से आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आ रही होगी। अब पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में कैसे आती है? when we have a sense, when we feel that we are safe, we are secure and we are leading a prosperous life, ऐसे इसको याद रखना है पॉजिटिव कंसेप्ट को। so this is a formula that I'm telling you how to remember the positive concept. so पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, ठीक है। अब और पॉजिटिविटी कैसे आएगी? when we are safe, when we feel safe, when we are secure, when we are prosperous. तो पॉजिटिव कंसेप्ट में क्या होता है कि वेलफेयर एक्टिविटीज जो होती है, लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज, वो हमें सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करती है। हमें लगता है वी आर सेफ, वी आर सिक्योर एंड वी आर लीडिंग अ प्रॉस्परस लाइफ एंड विल लीड अ प्रॉस्परस लाइफ इन द फ्यूचर। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, positive concept of labor welfare gives us a sense of safety, security and prosperous life. So that's why it is positive, ठीक है। हाँ, labor welfare activities give a sense of safe, secure and prosperous life. I hope it is clear. और ऑब्वियसली अगर लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज होंगी तब हमें लगेगा कि हाँ हमारे लिए कुछ हो रहा है, हाँ हम सेफ है, वी आर सिक्योर एंड वी आर लीडिंग अ प्रॉस्परस लाइफ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. Next is the social concept. Now here what it is said is that employer shall ensure welfare of employees, family and society as a whole. तो social concept में भाई society आ जाती है, social से society, जैसे positive से आपका positivity आ रहा था, so social से society comes into the picture. तो what it is said is that जो भी हम labor welfare activities करते हैं, so we should ensure, the employer, the management should ensure that the welfare of employees is happening, their family is happening and the society as a whole is happening, ठीक है। तो हमें सिर्फ एम्प्लॉयज के ही वेलफेयर पे फोकस नहीं रहना है। सो एज इट इज अ सोशल कंसेप्ट, हमें सोसाइटी को भी इनटू द पिक्चर लाना है। ओके, सो व्हाट द एम्प्लॉयर्स शैल इंश्योर, एम्प्लॉयर्स को क्या इंश्योर करना है कि भाई वो वेलफेयर करे एम्प्लॉयज का, उनकी फैमिली का एंड सोसाइटी एज अ होल का, सोसाइटी को ना छोड़े, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट करे। ओके, एम्प्लॉयज, फैमिली और सोसाइटी का। सो आई होप दिस इज क्लियर, सोशल कंसेप्ट. So here all things are coming into the picture, employees, family and society as a whole. Now comes the theories of labor welfare. So abhi we were reading the concepts of labor welfare, ठीक है, वो total concept, relative and all. Now we would come to the theories of labor welfare. Again, this is also a very important part, be it any exam, ठीक है, especially code 55 और कई बार HR एग्जाम्स में भी, जो HR PSU के होते हैं उनमें भी पूछा जाता है. So this is police theory, religious theory, philanthropic theory, trusteeship theory, placating theory, functional theory, public relations theory and social theory. ठीक है, so these are all the theories. अब इनको one by one let's start studying. Now let's start with the police theory. Okay,
So this theory, पुलिस आपके दिमाग में आ रहा होगा, but let's read and then make assumptions and then come to conclusions about this theory. So this theory is based on the fact that a minimum standard of welfare is necessary in an organization. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस थ्योरी के, ये थ्योरी बोलती है कि भाई मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वेलफेयर तो होना ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और पुलिसिंग कंपल्शन होती है उस मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है. सो एम्प्लॉयर्स आर वेरी सेल्फिश और वो अपने जो अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, लेबर्स हैं, उनका वेलफेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि उसमें पैसा लगता है, राइट. सो दे डू नॉट वांट टू डू द वेलफेयर ऑफ अदर्स. सो दैट इज व्हाई policing is compulsory to ensure that the minimum standards of welfare are provided to the laborers. Okay, now let's read this and then you will understand that this theory is based on the fact that a minimum standard of welfare is necessary in an organization. So this theory starts with this thing only कि भाई minimum standard of welfare तो necessary है organization में. और why is policing compulsory? Policing is compulsory because why? Men are selfish. So policing compulsion is essential, as without it, employers would not provide the employees with the minimum standard for workers, as men are selfish and want to satisfy themselves at the cost of others. ठीक है? So men यहाँ पे what we are assuming is that men are selfish, और अगर उन पे compulsion नहीं होगा, अगर policing नहीं होगी, check नहीं रखा जाएगा, so then they would satisfy themselves only. ठीक है? वो औरों के बारे में they won't worry. वो अपने profits और अपने satisfaction का ही वरी करेंगे. That is why policing should be there. So that is why state has to intervene to provide the laborers with the minimum standards. तो तभी इस policing theory में policing essential है, check रखना essential है, okay? तभी state को intervene करना पड़ता है to provide the laborers with the minimum standards. Clear? I hope this is clear. This is a very easy theory. Policing, ठीक है, पुलिस क्या करती है, चेक रखती है, राइट. और यहाँ पे हमारी जो लेबर वेलफेयर की थ्योरी है उसमें है कि भाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर आपको मेंटेन करना ही करना है, क्योंकि भाई जो एम्प्लॉयर्स है, मैन इज सेल्फिश, वो अपना ही सेटिस्फैक्शन चाहता है, औरों का नहीं चाहता. सो दैट इज वाई आपको कुछ कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करने पड़ते हैं. दैट इज वाई द स्टेट हैज टू इंटरवीन टू प्रोवाइड लेबरर्स विद द मिनिमम स्टैंडर्ड्स. ओके, सो दिस इज इट. Now let's talk about the religious theory. Now religious things have come into the picture. Now let's read it first and then you'll understand. According to this theory, the acts of men are related to religious beliefs due to which employers do welfare activities. तो भाई what is this theory saying? ये theory क्या कह रही है कि labor welfare activities क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी मैन करता है, जो भी मैन करते हैं, ठीक है, सो दैट इज रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीव्स. अगर आप लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी रिलीजियस बिलीव्स की वजह से कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस थ्योरी इज सेइंग. सो अकॉर्डिंग टू दिस, आई अगेन रिपीट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द एक्ट्स ऑफ मेन आर रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीव्स ड्यू टू विच एम्प्लॉयर्स डू वेलफेयर एक्टिविटीज. तो यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज क्यों की जाती है? बिकॉज भाई जो भी मेन करते हैं वो रिलीजियस बिलीव्स की वजह से करते हैं. लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज रिलीजियस बिलीव्स की वजह से की जाती हैं. So this is what the first line is saying. So these welfare activities are generally carried with the motive of good karma, atonement, an act of making amends for a wrongdoing. Atonement होता है कि आपने कुछ बुरा किया हो, ठीक है, तो अब आपको पता है कि आपने कुछ बुरा किया है, तो आप फिर खूब अच्छे काम करते हैं, ठीक है, अच्छे कर्म करते हैं, ताकि फिर वो जो आपके कर्म है, वो बुरे कर्म है, वो खत्म हो सके. ठीक है, आपने कुछ बहुत बुरा किया, अब आप काफी भला कर रहे हैं लोगों का, ठीक है, ताकि क्योंकि आपको रियलाइजेशन है कि यू हैव डन समथिंग बैड, तो अब आपको अच्छे कर्म करने हैं ताकि जो आपके बुरे कर्म है वो कट जाएं. ठीक है, या नाउ एंड फ्यूचर इमेंसिपेशन. और क्यों करता है वेलफेयर एक्टिविटीज लोग, क्यों करते हैं? फ्यूचर इमेंसिपेशन की वजह से. नाउ व्हाट इज दिस फ्यूचर इमेंसिपेशन? लिबरेशन बिफोर और आफ्टर डेथ. भाई कि आपको ना मोक्ष मिल जाए और आपके सारे बुरे कर्म धुल जाएं. ओके, सो इसीलिए लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज की जाती हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज वेलफेयर एक्टिविटीज आर जनरली कैरिड विद द मोटिव ऑफ गुड कर्मा. तो क्यों करते हैं? ताकि हम अच्छे कर्म करें. लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज इस थ्योरी के अकॉर्डिंग. ओके, और किस लिए? इफ यू डन एनी थिंग, कोई आपने अगर बैड चीज की है अपनी लाइफ में, यू डन एनी रॉन्ग डूइंग, ठीक है, तो आप उसको अमेंड करना चाहते हैं, या आपको मतलब कि मोक्ष चाहिए,
ओके आपके सारे बिल्कुल आप साफ सुथरे हो जाओ, आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं सारे कट जाएं एंड यू शुड बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग और आपको मोक्ष मिल जाए, ठीक है। सो दिस इज द रिलीजियस थ्योरी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थ्योरी। इसका बिल्कुल अगर मैं आपको एक सार वन लाइन में बताऊं, सो दिस इज इट कि भाई लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज रिलीजियस बिलीव्स की वजह से करी जाती हैं। क्यों करी जाती हैं? कि आप एक गुड कर्मा के मोटिव से की जाती हैं। अगर आपने कुछ बैड किया है पास्ट में तो उसको अमेंड करने के लिए, ठीक है, उसको क्रॉस करने के लिए आप और अच्छे अच्छे काम करते हैं, ठीक है, ताकि आपके मन से हट जाए कि भाई मैंने बुरे कर्म किए हैं और आपको डेथ के बाद मोक्ष मिले, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू डू welfare activities. So this is what this religious theory says. Now talking about the philanthropic theory. A philanthropic theory. Now what is philanthropic? अब बताइए philanthropes कौन होते हैं? जो mankind से बहुत प्यार करते हैं, जो लोगों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, उनकी sufferings को समझते हैं, okay? So they understand the sufferings of others and they try to remove it. तो वो बहुत सारे movements लाते हैं, ठीक है, ताकि लोगों की suffering improve हो सके, ठीक है, तो लोगों की suffering जो है कम हो सके, right? So it is based on man's love for mankind. Okay, now various philanthropists have come and have taught the importance of labor welfare. They understand the suffering of others and try to remove it through various ways and movements. Robert Owen is a significant example. So Robert Owen ने बहुत काम किया है लेबर वेलफेयर के लिए। उन्होंने बहुत बोला था कि हाँ भाई ऐसे मत ट्रीट कीजिए आप अपने लेबर्स को, ठीक है, उनके लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज करिए, उनकी सफरिंग्स को समझिए, उनके बारे में सोचिए, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवन एक फिलैंथ्रोप थे, ठीक है, जो मैनकाइंड से बहुत प्यार करते थे। ही यूज्ड टू लव मैनकाइंड, ठीक है। सो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मैन्स लव फॉर मैनकाइंड, ठीक है। तो जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्होंने वो आए हैं, काफी आए और गए, और उन्होंने क्या बताया? दे हैव टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर वेलफेयर। उन्होंने दुनिया को लेबर वेलफेयर की इंपॉर्टेंस बताई कि लेबर वेलफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्यों इतने लोग जो सफर करते हैं आप उनको क्यों सफर कराते हैं, ठीक है, यू शुड केयर अबाउट देम। ओके, सो दे अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ अदर्स एंड ट्राई टू रिमूव इट। तो वो ये लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अकेला इंसान इतना तो नहीं कर सकता, तो ये क्या करते हैं, ये लोगों को इकट्ठा करके वेरियस मूवमेंट्स लाते हैं, ठीक है, ताकि जो और लोग हैं, जब मूवमेंट्स होती है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो फिर लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है ना, लोगों पे और कंपनीज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, फैक्ट्री ओनर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट, कि हाँ यार अब तो इतने लोग मिलके बोल रहे हैं कुछ चीज, तो वील हैव टू डू, ठीक है, अदरवाइज इट विल स्पॉइल आवर इमेज। सो दैट इज व्हाई ये औरों की सफरिंग्स को इम्प्रूव करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, सफरिंग्स को रिमूव करते हैं बाय द वे ऑफ वेज एंड मूवमेंट्स। सो रॉबर्ट ओवन इज अ सिग्निफिकेंट एग्जांपल। रॉबर्ट ओवन एक सिग्निफिकेंट एग्जांपल है। तो अगर मैं वन लाइनर में इसको बताऊं, सो दैट फिलैंथ्रोपिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन लव फॉर मैनकाइंड, ठीक है, एंड इट मीन्स दैट द फिलैंथ्रोप्स अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ अदर्स, दे अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ लेबरर्स एंड ट्राई टू रिमूव इट, ठीक है, एंड इम्प्रूव देयर कंडीशंस, ठीक है, by the way of various ways and movements. Okay, so this is the philanthropic theory. Now trusteeship theory, ठीक है, अब ये हमने कल भी पढ़ा था, राइट, वी डिड इट इन द कंसेप्ट। अब ये थ्योरी भी है एक लेबर वेलफेयर की। नाउ महात्मा गांधी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर ऑफ दिस थ्योरी। सो महात्मा गांधी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर है इस थ्योरी के। ओके, नाउ आपको याद है मैंने पैटर्नलिस्टिक थ्योरी कराई थी ना, पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट कराया था, तो ये उस ट्रस्टीशिप, ये जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है ये पैटर्नलिस्टिक से थोड़ा लिंक्ड है। ओके, नाउ सो पैटर्नलिस्टिक थ्योरी इज द अदर नेम ऑफ दिस थ्योरी। तो इसको हम पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। अब मैंने आपको कल ही बताया था व्हाट इज पैटर्नलिज्म क्या होता था, व्हाट वाज पैटर्नलिस्टिक रिलेटेड टू। जैसे कि हमारे पापा होते हैं, right, he takes care of our needs, he provides whatever we want, right, वो हमारी बहुत केयर करते हैं। fatherly attitude, yesterday I taught you what paternalistic come meaning, right? So अब ये जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है इसको हम पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। और ट्रस्टीशिप थ्योरी के मेन एडवोकेटर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर कौन थे? महात्मा गांधी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर ऑफ दिस थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या कहा था कि भाई एम्प्लॉयर्स को अपने जो अंडर काम कर रहे हैं लोग, तो उनको क्या लेना चाहिए, एक फादरली एटीट्यूड उनके प्रति हमें रखना है। ओके, and as per this theory the whole property, profits etc of an organization are held by the employer in the form of a trust. जैसे टाटा चल रहा है ना आजकल, तो टाटा इज अ ट्रस्ट,
ठीक है। सो अब इस ट्रस्टीशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सारी कंपनी की प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉफिट्स है, ठीक है, जो होल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एम्प्लॉयर के पास कैसे हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। जैसे टाटा, रतन टाटा के पास एक ट्रस्ट के फॉर्म में, तो वे यही ट्रस्टीशिप थ्योरी बोलती है। ओके, सो ट्रस्ट इज फॉर्म्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड द सोसाइटी। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो सारे कंपनी की प्रॉपर्टी है दैट इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। ओके, सो अब ये ट्रस्ट क्या करता है, व्हाट डज दिस ट्रस्ट डू? सो इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट के लिए तो काम करता ही करता है, बट इट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स एंड इट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट है, ओके, ये किसके लिए काम कर रहा है? वर्कर्स के लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर रहा है ऑब्वियसली, और सोसाइटी एज अ होल के लिए भी काम कर रहा है। सो दिस इज द ट्रस्टीशिप थ्योरी। Now, next is the placating theory. This is also a very important theory and it is often asked in the exam, this placating theory. अब यहाँ पे what it is said that laborers working in the organizations are becoming aware of their rights. So अब ये theory क्या बोलती है कि अब laborers क्या हैं, अब वो बेवकूफ नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है आप उनको ऐसे exploit कर सकते हो. Now they are becoming aware of their rights. ठीक है, तो पहले बहुत जब पुराना टाइम था तो देन यू कुड एक्सप्लॉइट द वर्कर्स वेरी इजीली बिकॉज दे वर नॉट अवेयर। ठीक है, उनको अपने राइट्स का उतना पता नहीं होता था। ठीक है, और उस टाइम उनके पास शायद उतने राइट्स होते भी नहीं थे, और अगर होते थे कुछ राइट्स तो दे वर नॉट नोन अबाउट इट। ठीक है, दे हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, दे हैड नो नॉलेज अबाउट इट। ओके, सो जो अवेयरनेस था दैट वाज रियली लेस एट दैट टाइम, बट नाउ व्हाट इट इज हैपनिंग इज दैट लेबर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स। अब उनको अपने राइट्स के बारे में पता लग रहा है। ओके, so they are becoming active and demanding better working conditions, wages and standard of living. तो भाई वो एक्टिव हो रहे हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है, they are becoming active and as a result what they are doing is they are demanding better working conditions. उनको working conditions सही चाहिए, अच्छे चाहिए, और obviously this is desirable also ना, ये तो होना चाहिए। ठीक है, and they are demanding better wages and they are demanding better standard of living. ठीक है, so अब as per this theory an organization should display acts of labor welfare from time to time to appease and pacify the workers. अब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई लेबर्स को अब अपने राइट्स के बारे में पता है, दे आर बिकमिंग एक्टिव। ठीक है, उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छे चाहिए, उनको स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अपने इंप्रूव करने हैं, तो दैट इज वाई इस प्लेकेटिंग थ्योरी में बोला गया है कि तो इसीलिए कि वो इतना अवेयर हो गए हैं अब लेबर, तो ऑर्गेनाइजेशंस को टाइम टू टाइम ना लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज करनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप इन लोगों को अपीज कर सकें। ठीक है, अपीज मतलब टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देना। ठीक है, तो ताकि आप इन लोगों को लेबर्स को टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन दे सके और इनको पैसिफाई कर सकें, शांत कर सकें, क्योंकि वो इतने एक्टिव हो रखे हैं। तो अगर आप टाइम टू टाइम लेबर एक्टिविटीज करते रहेंगे तो उन्हें लगेगा हाँ वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, चलो हाँ यार ये हमारे लिए कर रहे हैं, हमें अपने राइट्स के बारे में पता है, बट चलो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे लिए टाइम टू टाइम लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज कर रही हैं, और फिर क्या होगा, वो थोड़े सेटिस्फाई हो जाएंगे लेबर्स और शांत हो जाएंगे। So that is the placating theory. Again, let's have a reading of it. Laborers working in the organizations are becoming aware of their rights. They are becoming active. They are demanding better working conditions. They are demanding better wages and standard of living. So as per this theory, the organizations should display acts of labor welfare time to time to appease and pacify the laborers. So that is why वो इतना अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स के बारे में और डिमांड कर रहे हैं बेटर वेजेस और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और वर्किंग कंडीशन, तो तभी ऑर्गेनाइजेशंस को टाइम टू टाइम लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज करते रहनी चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए और शांत हो जाए। सो दिस इज द प्लेकेटिंग थ्योरी। Now let's go to the next one. Next is the public relations theory, PR. Okay, जैसे आजकल ये बॉलीवुड वगैरह में बहुत यूज होता है PR। तो भाई कंपनीज को भी अपना PR करना पड़ता है, उनको भी अपनी पब्लिक इमेज इंप्रूव करनी पड़ती है। जैसे आजकल तो पर्सन्स को भी अपनी पब्लिक इमेज का बहुत ख्याल होता है, राइट? सो वैसे ही कंपनीज को तो होगा ही। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर शुड बी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एज वेल एज मैनेजमेंट एंड द पब्लिक। तो इसमें पब्लिक रिलेशंस में क्या बोला जाता है कि भाई मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज का आपस में गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। तो गुड रिलेशनशिप, ठीक है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज का लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए।
और मैनेजमेंट का पब्लिक के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। आप अच्छी सर्विसेज दोगे, अच्छी चीजें प्रोवाइड करोगे, पब्लिक के लिए भी कुछ करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी पब्लिक इमेज जो होगी वो इम्प्रूव होगी। The labor welfare programs often improve the public image of the organization. अब अगर आप लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज करते हो, लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स लाते हो, देन आपकी इमेज सोसाइटी में भी इंप्रूव होती है, इट इंप्रूव्स योर इमेज। अब आप एक बात बताइए, टाटा की कितनी अच्छी इमेज है, बिकॉज इट्स डूइंग अ लॉट फॉर देयर एम्प्लॉइज, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए बहुत कर रहा है और सोसाइटी के लिए भी बहुत कर रहा है, राइट? सो दैट इज वाई इट हैज अ वेरी गुड पब्लिक इमेज, ओके? So this is what the other industries, other factories should also involve itself in. Okay, so good relationship between management and employees, good relationship between management and the public, and the welfare programs improve the public image of the organization. So this is the public relations theory. So in case you've understood, hit the like button now. Now next is the functional theory. So this is also often asked, and the other name of it is efficiency theory. तो या तो आपको efficiency theory के उसमें ask किया जाएगा इससे related, या functional theory. So both are the same. If you talk about the functional, or if you talk about the efficiency theory, they are one and the same thing. So according to this theory, labor welfare activities improve the performance of workers and results in efficiency and productivity in a firm. So what it is saying is, when you are involving yourself in labor welfare activities, so what it does is it improves the performance of workers. वो performance workers का improve करता है, और अगर workers का performance improve होगा तो obviously हमारे फर्म की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब देखिए, आप खुद सोचिए, जैसे अगर आप अपने लेबर्स को बहुत गंदे वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, और एज अ रिजल्ट फर्म की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, और उनकी एफिशिएंसी भी कम होगी, एंड एज अ रिजल्ट फर्म की एफिशिएंसी भी कम होगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ यू आर प्रोवाइडिंग देम लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज, देन व्हाट वुड हैपन इज इट वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स, और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। सो दैट इज व्हाई this is also called the efficiency theory, that the labor welfare activity is improving the efficiency, okay, and the performance of workers. So functional क्यों है भाई, क्योंकि labor welfare activities क्या function कर रही हैं, it is improving the performance of the workers, it is improving the efficiency, okay? So this is the functional theory. Then is the last thing for today, that is the social theory. Now what is the social theory? So according to this theory, a factory is morally bound for the improvement of the society along with the improvement of the condition of its employees. It is taking a picture of social welfare. तो labor welfare क्या है, अब it is slowly and gradually taking the picture of social welfare. अब देखो social जहाँ पे आ जाता है, तो then society comes into the picture, right? Wherever social, just ignore my writing, okay? So wherever social comes, so society comes into the picture. So according to this theory, a factory is morally bound. अब देखो, फैक्ट्री पे कोई ऐसा लीगल बाउंड तो नहीं होता है, बट इट इज मॉरली बाउंड कि भाई उसे सोसाइटी को भी इंप्रूव करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द सोशल थ्योरी इज सेइंग, दैट दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a factory is morally bound for the improvement of the society along with the improvement of condition of its employees. तो employees के साथ साथ आप पे moral binding है that you have to improve the society as well, and slowly and gradually the labor welfare is taking a picture of social welfare. So this is what the theory says. So this is it for today, and make sure that you follow the telegram page. बहुत important है, क्योंकि जब मैं कुछ topics कराऊंगी उसके बाद मैं telegram पे आपका quiz लूंगी, okay, that आपको समझ भी आया है कि नहीं, and HR with Sanchita is the name itself. And yes, subscribe and share, which is very important, so that मैं फिर आपके लिए continuously content डाल सकूं. Thank you.